Hello everyone, welcome to today's video which is related to General Science Standard 6th. So today we are going to study the 8th chapter of General Science which is for Standard 6th, our skeletal system and the skin. Let's see, what is the skeletal system? Skeletal system is the system which is related to bones and the joints. स्केलेटल सिस्टम क्या है? तो ये बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. एंड नेक्स्ट इज स्किन. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है दैट इज स्किन. विच ऑर्गन सिस्टम्स डू यू सी इन द फिगर अलॉन्ग साइड? In the previous classes we have learned about some organ systems, their functions and their location in our body. With the help of that, complete the following table. Okay, so there are three figures they have given in the picture. In one figure they have shown the oral cavity, then thoracic cavity, abdominal cavity, and in another picture they have shown us the skeletal system. So let's see the name of organ, heart. So what is the function of organ? Heart is very important for pumping the blood. जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तभी वो ऑल ओवर बॉडी स्प्रेड हो पाएगा. हार्ट कम्स इन द thoracic cavity. Okay, so the body cavity is thoracic. Lungs. What is the function of lungs? अभी lungs क्या करते हैं? So the function of lung is respiration. And body cavity, that is thoracic cavity. Heart is mediastinal. Mediastinal means heart lies between two lungs. इसलिए हार्ट और लंग्स दोनों किस में आएंगे? thoracic cavity. Lungs are already in the thoracic cavity. Between the lung we can find the heart. So it is called mediastinal. So lung and heart both lies in the thoracic cavity. इसका मतलब क्या है कि हार्ट और लंग्स, हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? दो लंग्स के बीच में. इट इज कॉल्ड मीडियास्टिनल. सो हार्ट और लंग्स दोनों कौन से कैविटी में आएंगे? thoracic cavity में. Next is intestines. Intestines obviously they come in abdominal cavity which is below thoracic cavity. So intestine come in both cavities, that is abdominal cavity, and some part of intestine comes in pelvic cavity. And the function of intestine is digestion of food as well as the excretion. जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे आता है? पेल्विक कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी में. एब्डोमिनल कैविटी में उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आता है और थोड़ा जो बहुत रह जाता है दैट कम्स इन द पेल्विक कैविटी. तो अभी इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? एक तो डाइजेशन ऑफ फूड है और दूसरा एक्सक्रिएशन. एंड द ब्रेन कम्स इन द क्रेनियल कैविटी. जो दिमाग के ऊपरी भाग का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी. तो नॉर्मली बॉडी में कैविटीज़ कौन सी है? फर्स्ट इज क्रेनियल कैविटी, देन देयर इज ओरल कैविटी, then there is thoracic cavity, abdominal cavity and pelvic cavity. Okay, sometimes when we fall while playing or have an accident, a bone in our arm or leg may get broken. This is called a fracture of bone. A fracture in a bone causes severe and unbearable pain and the part with the broken bone swells immediately. तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली फ्रैक्चर होता क्या है? Whenever the intact bone gets broken down, मतलब जब भी एक intact bone है और because of any accident or because of any fall where it gets hurt or it gets broken down or there gets a crack in the bone, it is called a fracture. जब वो बोन की कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आएगा या बोन जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स, तो उसे हम फ्रैक्चर कहेंगे. A fracture in bone. If the fracture happens, what will happen? Like what will be the symptoms of fracture? How you can identify that you have got fracture? कैसे पहचानेंगे कि आपको फ्रैक्चर हो गया? एक तो वहाँ पे सीवियर पेन होगा. अनबेयरेबल मतलब जो आप लोग बेयर नहीं कर पाओगे, मतलब आप सहन नहीं कर पाओगे, ऐसा पेन होगा. That time we can come to a conclusion that we have got a fracture. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड कैसे दे पाएंगे हम? अगर
let's see what they are saying in the book. Your friend meets with an accident and a bone in his leg is fractured. How will you help? मतलब खेलते खेलते अगर आपका कोई फ्रेंड गिर गया तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे जब उसको फ्रैक्चर हो जाएगा? आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन, and whenever we will get fracture, that time that particular part will swells immediately, that broken bone will swells immediately. ये जो है ये नेचुरल नेचुरल स्प्लिंट के जैसा काम करता है. स्प्लिंट इज जब वो ब्रोकन बोन रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए जो हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्लिंट. So whenever your bone will get broken down, that time there will be a swelling, and because of that swelling you won't be able to move your leg or that particular part of the body. Okay, so सबसे पहले क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा. स्वेलिंग आने से क्या होगा कि आप वो पर्टिकुलर पार्ट मूव नहीं कर पाओगे, और दूसरा क्या, आपको सीवियर अनबेरेबल पेन रहेगा, इसलिए वो पार्ट मूव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो इसे ही हम नेचुरल स्प्लिंट भी बोलते हैं. तो अगर आपका कोई दोस्त फ्रैक्चर हो गया है, उसका पैर या हाथ फ्रैक्चर हो गया है खेलते खेलते, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि उसके जो मूवमेंट्स है फ्रैक्चर्ड पार्ट के, उसको हम प्रिवेंट करेंगे कि वो उसको हम वो पार्ट हिलाने नहीं देंगे. इमोबलाइज इट. इमोबलाइज मीन्स उसको हिलाना नहीं है. डू नॉट मोबलाइज इट एंड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प. And after going to hospital, what will be the first diagnostic evaluation? Diagnostic evaluation मतलब वो चीज़ को find out करने के लिए जो भी हम टेस्ट करवाएंगे, that is diagnostic evaluation. So we will go for the X-ray first, because in X-ray we can check out for the intact bone, whether the bone is intact or not, or it is cracked somewhere or broken somewhere. So it we can call it as a fracture. So fracture है या नहीं, ये find out करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे निकालेंगे. एक्सरे वे डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनराड रॉइंगटन. Okay, they can ask you for the one word question or for the fill in the blanks. Let's see next. In this figure we can see the fractured bone. Okay, so in x-ray you can see a crack or any like the intact bone will not be there, there will be a gap or any crack, so you can say that it's a fractured bone. An x-ray image shows whether a bone is broken and also exact spot where it is broken. This helps in providing the proper treatment. अभी एक्सरे क्या करता है, एक्सरे आपको दिखाता है कि बोन ब्रोकन डाउन हुआ है या नहीं हुआ है. अगर हुआ है तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट, कि वो एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ पे है जहाँ पे बोन जो है वो टूट गया है या क्रैक हो गया है. तो इससे क्या मदद हो सकती है अपने को कि आगे की ट्रीटमेंट क्या करनी है और एग्जैक्टली कौन से पार्ट पे हमें ट्रीटमेंट करनी है. सो एक्सरेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल इन केस ऑफ फ्रैक्चर. Let's try this. Let's identify our bones. Place your hand at the center of your chest and your friend's back. What is the name of the hard part? Okay, well, let's see. Till now, what all things we have seen. In first slide, we have seen the body cavities, that is cranial cavity, oral cavity, thoracic cavity, abdominal cavity and the pelvic cavity. उसके बाद हमने देखा कि हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन और ब्रेन कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से कैविटी में है और उसका फंक्शन क्या है. उसके बाद हमने देखा कि फ्रैक्चर क्या है. जब भी बोन की कंटिन्यूटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या कोई भी बोन जो है वो क्रैक हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं. अगर फ्रैक्चर हो जाए तो आपको कौन से सिम्टम्स रहेंगे, कौन से साइंस रहेंगे. फर्स्ट इज यू विल बी हैविंग अ सिवियर पेन, अनबेरेबल पेन, जो ऐसा पेन जो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और देयर विल बी अ स्वेलिंग. दीज आर द टू मेन साइन एंड सिम्टम. ओके, उसके बाद हमने देखा अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हम अपने फ्रेंड को कैसे हेल्प करेंगे. फर्स्ट थिंग इज डू नॉट मूव द अफेक्टेड पार्ट और डू नॉट मूव द इंजर्ड बोन. जो भी बोन क्रैक हुआ है, जो भी बोन फ्रैक्चर हुआ है, उसको हिलाना नहीं है. सेकेंड इज इमोबलाइज्ड इट. Immobilize it. That is, do not move the affected part or do not move the injured bone. जो भी bone crack हुआ है, जो भी bone fractured हुआ है, उसको हिलाना नहीं है. Second is, immobile it. That is, do not move the
द सेम थिंग, डू नॉट मोबिलाइज द अफेक्टेड पार्ट। उसके बाद क्या करना है, यू कैन आस्क फॉर द इमीडिएट मेडिकल हेल्प। हम जल्दी से जल्दी किसी मेडिकल हेल्प के लिए ढूंढ सकते हैं, या वी कैन कॉल द डॉक्टर। और उसके बाद जब हम हॉस्पिटल जाएंगे तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक टूल कौन सा रहेगा हमारा, एक्सरेज। क्योंकि एक्सरेज में हमें क्या पता चलेगा कि एग्जैक्टली बोन कहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, या हुआ है तो पर्टिकुलर स्पॉट कौन सा है। सो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी कर पाएंगे। सो एक्सरेज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल इन केस ऑफ फ्रैक्चर। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स क्या है। ओके, देर आर फ्लैट बोन्स, there are small bones. So they have given two types of bones. First is flat bone, second is small bones. So he's like the book is saying to try this. First is place your hand at the center of your chest. Okay, पहले अपना हाथ आपके चेस्ट पे रखिए एंड योर फ्रेंड्स बैक, और अपने फ्रेंड के बैक के पीछे रखिए। वॉट इज़ द नेम ऑफ द हार्ड पार्ट यू फील ऑन द प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट? डू यू फील सम हार्ड बम्प्स ऑन द बैक? वॉट आर दे कॉल्ड? वॉट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द बोन्स ऑफ द बैक एंड दोज ऑफ द चेस्ट? ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, चेस्ट के बोन्स कौन से हैं और बैक के बोन कौन से। तो नॉर्मली जब पहली बार देखेंगे हम कि टाइप्स ऑफ बोन्स क्या है। फर्स्ट इज फ्लैट बोन, सेकेंड इज स्मॉल बोन्स। ओके, मतलब इन्होंने बोन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फ्लैट बोन्स, उसके बाद है स्मॉल बोन्स, उसके बाद है इरेगुलर बोन्स, और चौथा नंबर है लॉन्ग बोन्स का। तो यहाँ पे देखेंगे human skeletal system. All the bones in our body are not of same shape. Every bone is different. All the bones together form a framework or the skeleton. The skeleton gives a shape to the body. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि अपने बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं और सब बोन्स सेम शेप के या सेम साइज के नहीं होते। ईच एंड एवरी बोन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। एवरी बोन इज डिफरेंट। ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क और द स्केलेटन। जब सब बहुत सारे बोन्स दे कम टुगेदर, जब वो साथ में आते हैं तब जॉइंट्स बनते हैं, और सब जब ये पूरे जॉइंट्स साथ में आते हैं तब स्केलेटन बनता है। सो व्हेन द बोन्स कम टुगेदर दे फॉर्म जॉइंट्स, एंड व्हेन जॉइंट्स कम टुगेदर दे फॉर्म स्केलेटन। मतलब जब छोटे छोटे बोन्स एक साथ आते हैं तो जॉइंट्स बनाते हैं, जब जॉइंट्स एक साथ आते हैं तो वो स्केलेटन बनाते हैं। तो ये जो स्केलेटन है ये अपने बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देता है। दैट्स वाई एवरी वंस बॉडी शेप इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सॉरी। All the bones of the body along with cartilage together form a skeletal system. तो skeletal system में क्या क्या है? First is bones. Okay, जब bones साथ में आएंगे तो they will form joints, और ये joints और bone को दोनों मतलब अटैच करने के लिए जो एक पर्टिकुलर थिंग है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ओके, तो कार्टिलेज और बोन्स का मिलके स्केलेटल सिस्टम बनता है। सिर्फ बोन स्केलेटल सिस्टम नहीं बना सकते, बोन्स को ज्वाइन करने के लिए बोन्स नीड कार्टिलेज टू मेक जॉइंट, and joints come together with the help of cartilage, and then the skeleton gets formed. Bones are hard, they are not flexible. Bones कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते। जैसे रबर, रबर को हम अगर तानेंगे तो उसे तान सकते हैं लेकिन बोन्स को नहीं। सो दैट इज कॉल्ड बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल। Bones are composed of two main constituents. Bone cells are biotic, while calcium carbonate, calcium phosphate, mineral and salts are the abiotic constituents of the bone. Calcium imparts strength to the bones. अभी ये क्या बोल रहे हैं कि बोन कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं और वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते। वी कैन नॉट इज नॉट फ्लेक्सिबल, बोन्स आर हार्ड। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। बोन में क्या रहता है? दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। फर्स्ट इज बोन सेल्स। बोन सेल्स कैसे हैं? बायोटिक रहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल एंड सॉल्ट ये क्या रहते हैं? अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन रहते हैं। ओके, तो बायोटिक
और अबायोटिक, ऐसे दो पार्ट्स है। बोन सेल्स जो रहते हैं दैट इज बायोटिक, और बाकी जो बोन में कंटेंट रहता है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल सॉल्ट्स, ये कैसे है सब अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बोन्स। और बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। The system which gives a definite shape to the body, provides supports and protects the delicate organ inside the body is the skeletal system. तो skeletal system का मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट तो है कि वो अपने बॉडी को शेप देती है, देन सेकेंड इज प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। मतलब क्या कि वो सपोर्ट देती है बॉडी को, और जो डेलिकेट ऑर्गन्स है मतलब जो भी जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, हार्ट है, लंग्स है, दिस आर ऑल डेलिकेट ऑर्गन्स, सो दे गेट प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. Now on this page they have shown the skeleton of various animals. Take a measuring tape and measure the length of the bones of your arms and legs. Do the same for your friend and sister. Okay, everyone's bone length is different. Mine is different, yours is different. मतलब सब लोगों का जो बोन का लेंथ होता है वो अलग अलग रहता है. सबका जो स्केलेटन होता है वो अलग अलग रहता है. दैट्स वाई वी हैव डिफरेंट शेप ऑफ आवर बॉडी from one another. So here they have given an experiment like you take the measuring tape and you measure the length of the bone in centimeters. So as a fun you can do this with your friends. Here they have given the skeleton. सबसे पहले जो ऊपर का भाग है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कल, जो हमारे ब्रेन को कवर करता है दैट इज स्कल, उसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं. उसके बाद रिब केज है, रिब केज के अंदर हार्ट, लंग, ट्रकिया ये सब कुछ आएगा. सो दिस रिब केज प्रोटेक्ट्स ऑल द थोरेसिक ऑर्गन्स. जो लेफ्ट हैंड पे दिखाया है आर्म इज देयर, देन द स्पाइन इज देयर, legs they have shown. These are the parts of skeletal system. The human skeleton system can be divided into two parts, the axial skeleton and the appendicular skeleton. ओके तो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन ऐसे दो में जो है ये स्केलेटल सिस्टम डिवाइड हुआ है. एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, स्पाइन, रिब केज. These are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. तो सबसे पहले क्या बताया है उन्होंने कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो में डिवाइड हुआ है. पहला क्या है एक्सियल स्केलेटन है और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है. तो एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है, कौन से पार्ट रहते हैं, स्कल रहता है, फिर स्पाइन रहता है और रिब केज रहता है. तो ये जो दोनों है वो कैसे सिमेट्रिकल है, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड पे उनका साइज एंड शेप है उतना ही राइट हैंड साइड पे है. एंड अलोंग द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब जो स्पाइन है वो स्पाइन हम वी कैन टेक इट एज अ मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो स्पाइन बीच में रहेगा और उसके आजू बाजू में क्या रहेगा, रिब केज रहेगा, स्कल उसके ऊपर रहेगा. सो द एक्सियल स्केलेटन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कल, उसके बाद स्पाइन एंड द रिब केज. ओके देन अपेंडिकुलर स्केलेटन is made up of bones of the upper and the lower limbs on either sides of central axis. मतलब जो आर्म्स और लेग्स के बोन्स है वो सब आएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में. ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होने के लिए हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. देखिए जो स्केलेटन सिस्टम है वो किस में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा, ये जो है वो पूरा सीधे लाइन में है, जैसे कि स्कल, अपने स्कल पे हाथ रखिए और बोलिए एक्सियल स्केलेटन. उसके बाद क्या आएगा, स्पाइन, अपने स्पाइन पे हाथ रखिए. यू कैन नॉट टच डायरेक्टली टू योर स्पाइन बट स्टिल वर्टिब्रेस के अंदर स्पाइन रहता है, सो टच देयर एंड से स्पाइन, स्पाइन कम्स इन एक्सियल स्केलेटन. और उसके बाद आता है रिब केज. तो ये स्कल, स्पाइन एंड रिब केज ये क्या हो गए हैं, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन.
तो जो भी एक्सियल स्केलेटन में दिया गया है वो छोड़ दीजिए और बाकी का जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में ले लीजिए। जैसे कि हमने स्कल, स्पाइन और रिब के छोड़ दिया, तो रहा क्या? बोन्स ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। तो बोन्स ऑफ अपर मतलब अपर एंड लोअर लिम्स जो भी है वो सब किस में आएंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अभी एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है देखिए, स्कल। द स्कल इज फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड द फेस। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. There are together 22 bones in the skull, 8 in the head and 14 in the face. Except for lower jaw, none of bones of the skull can move. ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि स्कल जो है, स्कल कौन सा पार्ट है? जो हमारा सिर है, ऊपर का सिर, दैट इज स्कल। ओके, स्कल की या उसको बोलते हैं हम क्रेनियम। क्रेनियल कैविटी इज वन ऑफ द कैविटी ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो क्रेनियम है, स्कल और फेस, ये दोनों के जो बोन्स है उससे मिलके ये स्कल बनता है। मतलब हेड और फेस की, हेड पे हाथ रखिए और फेस पे हाथ रखिए, हेड और फेस मिला के क्या बनेगा अपना? स्कल। मतलब गर्दन के ऊपर का जो भी हिस्सा है दैट इज कॉल्ड स्कल। अभी टोटल बोन्स कितने हैं स्कल में? 22 बोन्स है। ओके, स्कल में क्या क्या आता है? पहले तो हेड आएगा, फिर फेस आएगा। अपने हेड में टोटल 8 बोन्स है, 8 बोन्स। ओके, एंड फेस में कितने बोन्स है? 14, 14 प्लस 8 22। और ये जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ छोड़ के कौन सा भी बॉडी में सॉरी स्कल में ऐसा जॉइंट नहीं है जो मूव हो सकता है। लोअर जॉ दैट इज मैंडिबल इज द ओनली joint which can move, okay, in the skull. We are talking about the skull. Which organs of our body does skull protect? The very 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 important organ, that is our brain. Okay, देखिए अभी हमने अब तक क्या देखा? स्कल किससे बनता है? हेड और फेस के बोन से। अभी हेड में कितने बोन्स है? अपने हेड में है टोटल 8 बोन्स। और फेस में कितने बोन्स है? फेस में है 14 बोन्स। मतलब फेस के 14 और 8 हेड के, ऐसे टोटल 22 बोन्स मिला के होता है स्कल। तो स्कल में एक ही जॉइंट ऐसा है, उसे क्या बोलते हैं? मैंडिबल या लोअर जॉ, जो मूव कर सकता है। एक्सेप्ट दिस जॉइंट, none of the joint of the skull can move. Okay, so what we have seen, skull is formed by the bones of head and the face. Total bones of heads are 8 and total bones of face are 14. So 14 plus 8 equals to 22. So our skull is made up of 22 bones. And jaw, lower jaw is the only joint which can move from the skull. इसके अलावा कौन सा भी ऐसा जॉइंट नहीं है। एंड जॉ, लोअर जॉ इज द ओनली जॉइंट विच कैन मूव फ्रॉम द स्कल। इसके अलावा कौन सा भी ऐसा जॉइंट नहीं है जो मूव कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? लोअर जॉ या मैंडिबल। अभी ये जो क्रेनियम है, स्कल है, विच ऑर्गन इट प्रोटेक्ट्स? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। Next is rib cage. Feel the left and right side of your chest with your hands or the fingers. How many bones can you feel along together on two sides? Check in the center how many bones do you feel. The cage-like structure in the chest is called rib cage. Okay, cage मतलब हिंदी में बोलेंगे हम उसको पिंजरा। तो ये जो पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं रिब केज। केज, ओके, केज वर्ड सेम कम्स हियर. सो द एक्स्ट्रा वर्ड विच वी आर एडिंग इज रिब. रिब मतलब पसलियाँ, पसलियों का जो केज है दैट इज कॉल्ड अ रिब केज. तो अभी हमारे छाती में अगर हम हाथ, चेस्ट पे अगर हम टच करेंगे तो ऑन द बोथ साइड वी कैन फील सम हार्ड बोन्स और something like a cage. So it is a rib cage. The cage which is made up of ribs, it is called a rib cage. Okay, in the chest there are one vertical flat bone called sternum, जो ऊपर ही दिख रहा है आपको. 1 2 3 4 बोन्स का मिला के जो बना हुआ है उसे बोलते हैं हम स्टर्नम. ओके, स्टर्नम को दूसरा नाम ये भी है चेस्ट बोन, स्टर्नम और द चेस्ट बोन. तो रिब केज में क्या क्या आएगा? पहला तो स्टर्नम आएगा.
तो स्टर्नम में क्या है, मतलब स्टर्नम विच काइंड ऑफ बोन इज दैट, वर्टिकल है और फ्लैट बोन है। ओके, स्टर्नम इज वर्टिकल, वर्टिकल मतलब सीधा, मतलब खड़ा, और फ्लैट बोन है। 12 pairs of flat bones called ribs are joined to it sideways. These 25 bones from the rib cage, it is joined to the spine at the back. ओके, तो ये जो रिब केज है, रिब केज में कौन से बोन है, एक तो स्टर्नम है, ये स्टर्नम से ही जो ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है ये बाहर आई हुई है, मतलब जहाँ पे ज्वाइन हुई है। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मतलब टोटल रिब्स हो गई है 24 एंड वन स्टर्नम दैट इज 25। सो रिब केज इज मेड अप ऑफ 25 बोन्स। रिब केज जो है 25 बोन्स का बना हुआ है, जिसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स रहते हैं और एक स्टर्नम रहता है। सो 12 प्लस 12 24 प्लस वन स्टर्नम। स्टर्नम इन another name for the sternum is chest bone. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। चेस्ट बोन बोले तो उसे ही बोलते हैं हम स्टर्नम। तो रिब केज में क्या क्या आएगा, स्टर्नम आएगा और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आएगा। 12 पेयर्स मतलब 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 प्लस वन स्टर्नम इक्वल्स टू 25। सो रिब केज इज मेड अप ऑफ 25 बोन्स। तो स्टर्नम कैसा है, वर्टिकल है और फ्लैट बोन है। ओके, और जो 12 पेयर ऑफ फ्लैट रिब्स है वो भी कैसा है, फ्लैट बोन्स में आता है। मतलब स्टर्नम इज ऑल्सो फ्लैट बोन एंड द रिब्स इज ऑल्सो फ्लैट बोन। द स्पाइन, तो ये जो रिब केज है ये किसे ज्वाइन करता है, आगे से तो वो स्टर्नम को ज्वाइन है, तो पीछे से ये पूरा किससे ज्वाइन होगा, स्पाइन से। ओके, the spine is otherwise called as a backbone or the vertebral column. Okay, spine को क्या बोलते हैं हम, vertebral column या backbone. The spine is formed by padlock shaped bones placed straight one above another. There are altogether 33 bones in the spine, each called vertebra. जो स्पाइन के मतलब स्पाइन को ही हम क्या बोलेंगे, बैकबोन। बैकबोन मतलब जो पीठ में बोन्स होते हैं उसे बोलते हैं हम स्पाइन, या उसको और एक नाम है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कैसे बना हुआ है, पैडलॉक शेप के बोन्स एक साथ मिल के, ऐसे टोटल 33 बोन्स है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है 33 बोन्स, और उसका बन के बना है वर्टिब्रल कॉलम। These bones are arranged one above the other flexibly. The spine protects the spinal cord that originates from the brain. Okay, brain is protected with the help of cranium cavity or the skull. And then the continuation of brain, when it goes down the brain, when it comes down, it forms the spinal cord. The continuation of the brain, that is called a spinal cord. So spinal cord gets protected with the help of the spine. So this spine originates, the origin of the spinal cord is the brain. मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसका ओरिजिन कहाँ से है, ब्रेन से है। तो ब्रेन जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहाँ से जो कंटिन्यूएशन में नीचे ऑर्गन आएगा उसे हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ये स्पाइन और बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। यू कैन कॉल इट एनी वन नेम फ्रॉम दिस। What would have happened if we didn't have a backbone? अगर बैकबोन नहीं होता तो क्या होता, हम मूव नहीं कर पाते, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अनप्रोटेक्टेड रहता था। ओके, सो हमने अभी क्या देखा है, एक्सियल स्केलेटन। तो व्हाट कम्स इन एक्सियल स्केलेटन, वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। सो एक्सियल स्केलेटन में आएगा, फर्स्ट इज स्कल, स्कल के बाद आएगा रिब केज, after rib cage the spine, or another name for it is backbone or the vertebral column. So what we have seen in axial skeleton, we have seen the skull, then rib cage and the vertebral column. Skull has total 22 bones, vertebral column has total 33 bones, and rib cage has total 25 bones. I hope you have understood the chapter which I taught you till now. Let's continue the remaining chapter in next video. I hope you like the video. Thank you very much.